look into those topics in order to revise the topics and in order to have the command on those topics. These are very simple basic topics, but as we have to revise them, then we will start. So let me share the screen so that we can move ahead. So this is the basic topic of grammar, and these are the basic topics that we have to revise. All first thing that we have to go through is universal formula for structure in English or for the sentence structure, or what is a sentence. As we will start from the basic level, as in English language, the basic sentence starts with the subject, then there is verb, and at the end there is an object. So subject plus verb plus object, this is the complete structure of an complete English sentence. Here it is written, a sentence can be without helping verbs. If there is no helping verb, that also will be a sentence, and the example is given of that formula is subject, then there will be main verb, and there will be object. So starting from the very basic level, in English, the basic sentence starts with the subject, then verb, then object, S plus V plus O. And the examples are given. The first example is, I read newspaper. In this sentence, I is a subject, then read is a verb, and newspaper is a object. Then in second sentence, he plays cricket. You can see the example of subject, verb, and object. Third and fourth sentence also clear the basic concept of subject, verb, and object. So we can see that a basic English sentence starts with the subject, then comes the verb, and then the object. So this is the final structure of an English sentence. Then there are parts of sentence. When we look at a sentence in English, then what are the parts of that sentence? A sentence, basic sentence has two parts in English. What are those two parts? A sentence must be a complete thought. First criteria for being a sentence is that it must be a complete thought. It must be a complete thought. And second criteria is the subject of the sentence is the naming part that tells who or what. There must be a subject in a sentence. And what is the subject? Subject is the naming part, means it may be a noun or a pronoun, and it tells about the who and what in the sentence. Then the predicate part, as we have studied that there are two parts of sentence. These two parts are underlined in the red ink. The first part is the subject and the second is the predicate. So subject and predicate both form a sentence. The predicate begins with the verb. Mostly the predicate part begins with the verb and is telling part. Telling part means it tells us something about the subject. For example,
he is playing cricket, then he is the subject, is playing cricket is a predicate. So is playing cricket tells us about the subject he. So a predicate begins with the verb and is the telling part. It is also called the telling part that tells us something about the main subject. So this is very clear from this example. A last part is most of the time the subject can be found at the beginning part of a sentence. And in English, mostly we find the subject at the very start of that sentence. For example, he is playing, or when we say that Ali is writing a novel, then Ali is a subject, and subject mostly comes at the start of the sentence. So starting from the very basic level, a sentence has a subject, verb, and object. Then a complete sentence has two parts. First part is called the subject part, and the second part is called the predicate. A subject can be a noun or pronoun, and predicate tells us something about the subject. So we will ask about these two parts of sentence in the MCQ form. For mostly the predicate is asked. The sentence, in the sentence, the part will be underlined. Then there will be four options. For example, option A is noun clause, option B predicate, or whatsoever. In this way, you have to just underline, just mark the right answer. So these questions are related to the MCQs. Then there further we move towards the definitions, final definition of these two. First is what is subject. A subject is the person. For example, if the sentence is Ali is playing, then Ali will be a subject, or thing. It may be a thing. Person or things are mostly called as nouns. So subjects are mostly nouns that is doing an action, or the person or thing that is focused in the sentence. It may be a person or thing that is doing something, or it may be a person or thing that is focused in the sentence. So then second part is predicate of a sentence is the part that contains the action. If in the subject part there is a subject, then in predicate part there will be a action. For example, he is playing hockey, then he is a subject playing hockey. Playing is an action, and playing hockey complete underlined will be a predicate. So in this way we can do differentiate between subject and predicate. So in simple words, जब भी आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए जिसमें से आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना हो, तो आप देखिए जिसमें आप सब्जेक्ट पार्ट वो होगा जिसमें या तो नाउन होगा या फिर आपके पास प्रोनाउन होगा, तो आप उसको इजीली कर लेंगे. अब प्रेडिकेट को किस तरह देखेंगे, अब सब्जेक्ट्स को लिंक करके आगे जिसमें एक्शन होगा और जिस जो वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस का, वो सारा पार्ट एक सिंपल सेंटेंस में प्रेडिकेट होगा. तो मेन फोकस प्रेडिकेट पर रहेगा. आपका जो सब्जेक्ट है वो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. Then here are some further examples. यहाँ पे भी हैं जो आपको फर्दर इसको क्लियर कर लेंगे कि आपने इसको किस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में से. अब फर्स्ट एग्जांपल इज अगेन जो पीछे हमने किया वही रिवाइज हो रहा है. दैट a sentence have two parts. First one is subject and second part is predicate. So subject is a noun or a pronoun. This may be a noun or a pronoun because जो भी sentence start होता है या तो किसी name से होता है या उसकी जगह he, she, it, they लिखा होता है. तो आप subject ही name भी हो सकता है और कोई pronoun भी हो सकता है. Then predicate जो start होता है starts with the verb. Second part यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको further elaborate किया गया है. The subject is the who और what. ये who और what को आंसर करता है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल अली इज प्लेइंग अ हॉकी. अली को हटा दें, इज प्लेइंग अ हॉकी, तो इज प्लेइंग अ हॉकी हु, तो आंसर वापस अली पे आता है. सो अली सब्जेक्ट होगा. ये who और what को आंसर करता है सेंटेंस में. Then second part is the predicate that tells what the subject does. It tells about the activities of the subject. सब्जेक्ट के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल अली इज स्लीपिंग. अब इज स्लीपिंग यहाँ पे प्रेडिकेट है बिकॉज ये अली के बारे में बता रहा है.
तो प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा होता है सेंटेंस में, और जो आपका सब्जेक्ट है वो तो मेन जो एक्टर होगा सेंटेंस में, किसी एक्शन को करने वाला होगा वहां पे। देन देयर आर टू एग्जांपल, द बिग ग्रीन फ्रॉग। यहाँ पे देखें बिग ग्रीन फ्रॉग, ये एक ही वर्ड है, ये सारे के सारा आपको सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जम्प अक्रॉस द लॉग, अब यहाँ पे देखें जंप एक वर्ब है, हमने ये पढ़ा कि प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होगा और ये वर्ब से स्टार्ट हुआ। अक्रॉस द लॉग, ये पूरे का पूरा आपका प्रेडिकेट पार्ट है, पहले का पार्ट जो सब्जेक्ट है। अब ये पूरे का द बिग ग्रीन फ्रॉग, अब देखें फ्रॉग को बताया गया है, ये पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट है, और फ्रॉग के बारे में क्या बताया गया है वो आगे है, और जो किसी फ्रॉग किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सो आई होप सो कि यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट बेसिक आपका रिवाइज हो गया होगा, हमने नाइन्थ में उसको डिटेल में पहले से किया हुआ है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट slide, that is in a sentence subject and predicate parts are given, और ये फाइनल उसी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए कि सेंटेंस से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह से अलग करेंगे। अब डेफिनेशन आपके सामने है, अगर इसको आप रिवाइज करें तो सब्जेक्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड, द अर्थ ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। अब इज राउंड इज वर्ब है, और वर्ब के बाद सेंटेंस का जो भी पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर है आपके दोनों में कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह करेंगे। इसी तरह आपको सेंटेंसेस गिवन होंगे जिसमें से आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। देन these rulers is a subject, then belongs to me, belongs यहाँ पे to me ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। इसी तरह से she rain सिंपल अगर सेंटेंस है तो she सब्जेक्ट है और rain प्रेडिकेट है। अब आपने देख लिया प्रेडिकेट वन वर्ड भी हो सकता है, जिस तरह रेन में देखें मोर देन वन वर्ड्स भी हो सकते हैं। मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के जो भी पार्ट सेंटेंस का होगा वो प्रेडिकेट होगा, तो आप इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट का आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड you have revised the concept, because we have studied all these basic things in 9th class. It's 10th class, so we are doing just for the sake of revision. Then we will move towards the next slide, that is related to compound predicates. There are two types of predicate. First one is simple and second is compound predicate. And what is compound predicate? Two are simple predicates within the same subject form a compound predicate. If there are two or more predicates in a simple subject with the same single subject, they are called predicate. For example, if we write the example here, he tried out and made the team. Then there are two thoughts, tried out and made. आप इसमें देखें तो tried out भी यहाँ पे है, एक जो काम उसने किया, and made the team, पहले उसने कोशिश की, और अब देखें मोस्टली ये है कि जो प्रेडिकेट कंपाउंड प्रेडिकेट होता है उसके अंदर आपको एक से ज्यादा वर्ब मिलते हैं, एक से ज्यादा एक्शन मिलते हैं, तो आप इसको इस सेंस में याद रख लें। अब इसकी एग्जांपल फर्दर भी है कि कंपाउंड प्रेडिकेट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको कहा जाए आइडेंटिफाई कौन सा प्रेडिकेट यूज हुआ है, तो आप देखेंगे अगर एक सब्जेक्ट एक है बट उसके साथ एक्शन मोर देन वन है तो आप उसको कंपाउंड प्रेडिकेट में करेंगे, मीन्स उसके साथ एक से ज्यादा वर्ब लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही है। एग्जाम्पल इज द कैट चेज्ड एंड कॉट द माउस। अब देखें द कैट ये तो सब्जेक्ट हो गया, चेज्ड फर्स्ट वर्ब, एंड अब दूसरा वर्ब यहाँ पे है कॉट द माउस, चेज्ड उसने पीछा किया एंड कॉट। अब चेज्ड एंड कॉट यहाँ पे टू वर्ब्स हो गए, वर्ब वन एंड वर्ब टू। अगर यहाँ पे ये होता है द कैट गॉट द माउस तो हम इसको कहते हैं ये सिंपल प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे ये है द कैट चेज्ड एंड कॉट द माउस, देन इट्स अ कंपाउंड प्रेडिकेट। सो कंपाउंड प्रेडिकेट आपको आई होप सो कि यहाँ से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। देन सेकंड एग्जांपल भी देख लें, आपको और क्लियर हो जाएगा। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। अगर सेंटेंस यहीं तक होता थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। अब देखें थॉमस एडिसन यहाँ पे सब्जेक्ट है और इन्वेंटेड एक वर्ब के साथ, लाइट बल्ब पे अगर सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाता, देन
ये आपके पास सिंपल प्रेडिकेट होता है, बट यहाँ पे अगर देखें एंड हेल्ड ओवर 1000 पेटेंट्स फॉर हिज इन्वेंशंस, तो आप देखें हेल्ड यहाँ पे अगेन सेकंड वर्ब है, सो वर्ब वन प्लस वर्ब टू दोनों यहाँ पे आएंगे हैं, सो वी कैन से इट्स अ कंपाउंड प्रेडिकेट। सो अगर आप इसको समराइज करें अब तक की जो आपकी डिस्कशन है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं सेंटेंस के टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड सेकंड इज द प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में आपको नाउन हो सकता है और प्रोनाउन, एंड प्रेडिकेट की टू टाइप्स हैं। प्रेडिकेट वो तमाम पार्ट होता है जो नाउन से जो वर्ब से स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है सिंपल वर्डिंग में। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो भी रेज हैंड हुआ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। कोई भी नहीं है। हाँ देन अल्फा मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज अभी अलाउ नहीं है आपको अदर नेम के साथ यहाँ पे होना, ठीक है। थोड़ा सा इशू हो गया था तो रीस्टार्ट हो गया था, तो मैं इसको दोबारा से उस पे ले जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ से आप देखें जो आप यहाँ पे हमने छोड़ा था, इस पे हम जा रहे थे। देन यहाँ पे कंपाउंड प्रेडिकेट की बात हो रही थी। सो फॉर कंपाउंड प्रेडिकेट वी हैव टू लुक एट द सेंटेंस। आपके पास जो भी सेंटेंस आएगा इन सिंपल वर्डिंग, आपने उस सेंटेंस को देखना है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट इज द subject and second part is the predicate. So we have to look for the subject part. Subject part mostly आपके पास noun और pronoun से होगा। देन आपने जो अदर देन सब्जेक्ट पार्ट है जो वर्ब से स्टार्ट होगा, उसको देखना है आगे तक जो भी पार्ट है उसके अंदर एक्शन होगा, और एंड दैट विल टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सो उस पार्ट को आप प्रेडिकेट कहेंगे। देन प्रेडिकेट की देयर आर टू टाइप्स जो हमने अभी तक कर ली। फर्स्ट पार्ट इज द सिंपल प्रेडिकेट एंड सेकंड इज द कंपाउंड प्रेडिकेट। इन सिंपल प्रेडिकेट देयर विल बी सिंगल एक्शन और सिंगल वर्ब, एंड इन कंपाउंड प्रेडिकेट देयर विल बी मोर देन वन वर्ब्स। देन आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है कंपाउंड प्रेडिकेट की, द कैट चेज्ड एंड कॉट। यू कैन सी दैट चेज्ड एंड कॉट, यहाँ पे टू एक्शंस हैं और टू वर्ब्स, सो ये कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। सो आपने जो करना है सेंटेंस में जस्ट सिंपल प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट, इनको आइडेंटिफाई करना है। और अब तक की डिस्कशन से हमने काफी इसमें से कर लिया क्वेश्चन। देन सेकंड पार्ट में जब आप देखें इसको, तो आपको यहाँ पे जो हम जब सेंटेंस से बाहर निकल गए तो सेंटेंस के पहले तो हमने ये पार्ट्स पढ़ लिए, टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज द प्रेडिकेट। देन देयर आर आल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर इन इंग्लिश sentence as alphabets combine to form words, words combine to form phrases, then clauses, and then the complete sentence. In this way, what is the difference between clause and phrase? This is also given here. A clause is a part of a sentence that contains a verb. A typical clause consists of subject and a predicate. Because we have already studied about the predicate, that what is predicate. The latter typical a verb, phrase, or so in simple way we can say that a clause is a part of sentence that contains a verb, subject, and predicate. Now, what is phrase? Phrase is a small group of words that adds meaning to the sentence, but it does not give the complete meaning. A phrase is not a sentence.
फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट आइडिया। पहले तो ये कंप्लीट आइडिया नहीं है। Complete idea means there is no subject, there is no verb, and there is no predicate. And what are subject, verb, and predicate? ये हम अभी डिटेल से कर चुके हैं। So basic difference जो है आप इसमें क्लॉज एंड फ्रेज में, ये आप अभी इसको भी आप याद रखेंगे ताकि आपका हो सके, क्लियर हो सके। अब एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ही मस्ट स्टॉप लॉफिंग। ही सब्जेक्ट है, स्टॉप लॉफिंग। अब देखें यहाँ पे वर्ब भी है, सब प्रेडिकेट पार्ट भी है और सब्जेक्ट भी। सो ये कंप्लीट सेंटेंस है। जबकि दूसरे फ्रेज पार्ट में अब देखें द इंफॉर्मेशन एज, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन एज का पता चलता है, आपको कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, तो ये फ्रेज है। देन आपको यहाँ पे टू मच क्विकली, सी टू सी क्लियरली, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब फ्रेजेस की टाइप्स होती हैं जो हम आगे जाके करेंगे कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्बियल, वो हमारा अलग से एक लेसन है। बट यहाँ पे आप सिर्फ ये देखें क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे जब हम मूव करते हैं, देन वी हैव अनदर स्लाइड। देन व्हाट इज फ्रेज? यहाँ से फ्रेज के फाइनल क्लियर हो जाता है कि फ्रेज हम कहते किसको हैं। ये आपने सारे के सारे टॉपिक्स 9th में किए हुए हैं। अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग्स टू द वर्ड। एंड सेकंड थिंग इज रिटन, अ फ्रेज इज नॉट अ सेंटेंस बट इट इज नॉट अ कंप्लीट आइडिया, बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट आइडिया विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बिकॉज अब सिंपल वर्ड में ये याद रखें कि इस फ्रेज के अंदर कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं होता। फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। एंड फ्रेज जो होता है मीनिंग कुछ हद तक देता है बट नॉट द कंप्लीट सेंस। तो इस तरह से ये फ्रेज का आपको क्लियर हो जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देन अब आप देख लें नाउन फ्रेज। वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 10, हमने कर लिया हुआ है यहाँ पे। कल हमने नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई कर लिया था। बट अब नाउन फ्रेज होता क्या है, इसको हम कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। नाउन फ्रेज, अब फ्रेज का तो आपको पता चल गया, इसीलिए हमने डिस्कस किया कि आपको इससे क्लियर हो कि व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज का क्या पता चला, अब दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस। एंड इन अ फ्रेज देयर इज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस हम उसी को कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब नाउन फ्रेज, नाम से ही जाहिर है नाउन फ्रेज मीन उसके अंदर एक ऐसा फ्रेज जिसके अंदर नाउन हो। इसकी डेफिनेशन लिखी है, व्हेन वी सी अ नाउन एज परफॉर्मिंग रोल इन द सेंटेंस वी थिंक ऑफ इट एज नाउन फ्रेज। मींस अ नाउन फ्रेज एक्ट्स एज अ नाउन, ये एक नाउन का काम कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर, नाउन सेंटेंस। देन नाउन फ्रेज में फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ये उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हो सकता है। नाउन फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड, जिस तरह पीछे हमने देखा सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे ये है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन यहाँ से देखनी है, व्हाट आर नाउन फ्रेज, और इसको आइडेंटिफाई करना है। और जो आपने हमने वहाँ पे किया वो यहाँ से वो भी रिवाइज हो जाएगा हमारा, बिकॉज मोस्टली जिन्होंने अटेंड नहीं की थी कल का, तो वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है नाउन फ्रेज की जो हम कर चुके हैं। अभी फर्स्ट है, आई हैव अ वेरी ओल्ड हाउस। अब देखें पूरा सेंटेंस है, आई हैव, आई सब्जेक्ट है, हैव अ वेरी ओल्ड हाउस, ये यहाँ पे अंडरलाइन है। अ वेरी ओल्ड हाउस, इस पार्ट को अगर आप फोकस करें, देन दिस पार्ट डजंट गिव कंप्लीट सेंस। सो फर्स्ट स्टेप कि आपने सेंटेंस में से फ्रेज आइडेंटिफाई करना है। अब आपने फ्रेज जब आइडेंटिफाई कर लिया इसमें से, यहाँ से आगे, देन आपने इसमें से देखना है कौन सा फ्रेज है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्बियल है। तो हम जब नाउन फ्रेज के लिए देखेंगे तो उस फ्रेज के अंदर नाउन का होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखें हाउस, इस फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज है। इसके बाद तीसरे स्टेप में आपने ये देखना है कि वो नाउन फ्रेज कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी ओल्ड हाउस, क्या अ वेरी ओल्ड हाउस नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे? तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कर रहा है। दूसरे क्राइटेरिया पे देखें कि इस फ्रेज के अंदर नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो सकता है। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो है, आप वो देखेंगे अ नाउन फ्रेज एक्ट्स आंसर्स अ व्हाट
और हु, ये किसी भी सेंटेंस में व्हाट का आंसर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो इसमें देखें आई हैव से आगे वाले पार्ट को अगर आप भूल जाएं, आई हैव से आगे वाले, तो आपको क्या आंसर आता है? व्हाट। आई हैव व्हाट, इस व्हाट का आंसर कौन कर रहा है? अ वेरी ओल्ड हाउस कर रहा है। इट मीन्स अ वेरी ओल्ड हाउस नाउन फ्रेज है। सो जहाँ पे भी आपको व्हाट का और हु का आंसर हो किसी फ्रेज से, और उस फ्रेज के अंदर नाउन प्रेजेंट हो और वो फ्रेज हो, देन दैट विल बी अ नाउन फ्रेज। तो ये सिंपल सा इसका, वो कल हमने डिस्कस नहीं किया था बट हमने कंप्लीट कर लिया था। देन आप नाउन फ्रेज का क्लियर हो गया। देन जो आपकी एक्सरसाइज है उसको हम दोबारा से एक रिव्यू करेंगे, जो आप कर चुके हैं वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब इसको हम इस क्राइटेरिया पे लेके चलेंगे बिकॉज फ्रेजेस हमने आगे और भी करनी है, एडवर्बियल फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, वो सारी हमने करनी है। इसलिए नाउन को हम यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं सो दैट वी कैन डू द रिमेनिंग्स इन द अलॉटेड टाइम, जब भी आपका क्लास हो उसमें कर लें। अब इसमें देखें अंडरलाइन द नाउन फ्रेज। हमने करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलें तो हमने देखना है यहाँ इस सेंटेंस से हमने पहले तो फ्रेज निकालना है। जब हमने फ्रेज निकाल लिया फिर उसमें से उस फ्रेज में नाउन ढूंढना है। एक ऐसा फ्रेज हमने सिलेक्ट करना है जिसके अंदर नाउन हो, तभी वो नाउन फ्रेज हो सकता है। फिर हम उसको कुछ क्राइटेरिया पे चेक करेंगे कि वो नाउन फ्रेज है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप देखें दिस इज, इसके बाद देखें तो यहाँ पे एन ओल्ड फैशन हैट, ये मैंने एक फ्रेज अंडरलाइन कर लिया। अब ये पहले तो पता चल गया ये फ्रेज है। सेकंड आपने देखना है कि इसके अंदर नाउन है, तो आप देखें हैट ये नाउन है इसके अंदर। सो अब नाउन भी है फ्रेज भी है। अब आपने इस क्राइटेरिया पे देखना है कि क्या ये हु और व्हाट का आंसर करता है इसके अंदर। अब दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, सो ये व्हाट का आंसर कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक नाउन फ्रेज है। तो इस क्राइटेरिया पे, क्योंकि आपको जो पेपर में आते हैं मोस्टली वन सीन भी होते हैं क्वेश्चन, सो आपने इस क्राइटेरिया को याद रखना है नाउन के लिए। फिर आपके एडवर्बियल और एडजेक्टिव फ्रेज कल जब करेंगे फिर और आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगी अगर आप एक एक और नहीं चलेंगे। अब सेकंड को इसको देखें, वी डिस्कवर्ड, और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे फास्ट प्लान्स। देन आप इसको जब ये देखते हैं वी डिस्कवर्ड फास्ट प्लान्स, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ फास्ट प्लान्स। आप देखें फास्ट प्लान में फास्ट नाउन है यानी, और ये फ्रेज भी है। पहले तो आपने देखा ये फ्रेज है, सेकंड ये नाउन भी है। अब आप देखें उस क्राइटेरिया पे कि क्या ये हु और व्हाट का आंसर करता है। ही डिस्कवर्ड व्हाट, अब देखें कर रहा है हु डिस्कवर्ड व्हाट, फास्ट प्लान जो है वो व्हाट को आंसर कर रहा है। थर्ड में हमने इस तरह किया था नाउन फ्रेज को। सो आप नाउन फ्रेज को इस तरह पक्का कर लें ताकि आपके बाकी फ्रेजेस जब हम कल पढ़ेंगे वो आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें लिखा है रोलिंग स्टोन, मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब गैदर्स वर्ब है तो वर्ब से आगे देखें नो मॉस। रोलिंग स्टोन यहाँ पे देखें, आप देखें पहले इसके अंदर नाउन है तो ये फ्रेज भी है और नाउन भी है, इसमें नाउन फ्रेज हो सकता है। अब गैदर नो मॉस को अगर अगले पार्ट को आप देखें, गैदर नो मॉस, अब क्या चीज का, किस चीज का कोई वेट या मॉस नहीं होता। व्हाट का आंसर कौन कर रहा है? रोलिंग स्टोन। सो रोलिंग स्टोन भी क्या हुआ? नाउन। तो इस तरह से आप करोगे इसको, सबको ये व्हाट का आंसर कर रहा है। और जब आप रोलिंग स्टोन को देखते हैं तो ये भी इसको नाउन फ्रेज के तौर पे आप यहाँ पे लिखते हैं। इसको ये हु का आंसर करता है, सॉरी, जो नेक्स्ट पार्ट है ये हु का। कैसे हु का करता है? अब देखें रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अगर आप सिर्फ देखें गैदर नो मॉस, हु इसका वजन नहीं होता, तो आप देखते हैं रोलिंग स्टोन। तो इस तरह से ये दोनों हु और व्हाट को आंसर करते हैं, तो आपका ये नाउन फ्रेज है। लास्ट में देखें तो यहाँ पे है द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। पहली चीज तो ये है द रिसेंट फ्लड, कॉज्ड वर्ब है तो उसके बाद हैवी डैमेज को आए। अब देखें रिसेंट फ्लड, तो आप क्राइटेरिया अप्लाई करें, फ्लड इसमें नाउन है, फ्रेज भी है, इट मींस ये फ्रेज नाउन फ्रेज हो सकता है। स्क्रीन में दोबारा से शेयर कर लेता हूँ बिकॉज ये कनेक्शन इशू आ जाता है तो बीच में इंटरप्ट हो जाता है। अब इसी तरह से रिसेंट फ्लड हमने कर लिया हैवी डैमेज के तौर पे, तो आप देखें ये भी पुअर वर्ड का आंसर करता है। तो लास्ट जो हमारा रह गया इसमें एन ओरल प्रेजेंटेशन। अब इसमें आप देखें तो एन ओरल प्रेजेंटेशन
तो एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। अब इसको अप्लाई करें एन ओरल प्रेजेंटेशन में क्या नाउन है, तो हमें पता चला इसमें नाउन है। देन हम देखेंगे कि व्हाट का आंसर करता है। आगे वाला पार्ट आप जब इसको स्टडी करें, कैन बी इंटरेस्टिंग, व्हाट कैन बी इंटरेस्टिंग, व्हाट का आंसर आ रहा है। अब इसका व्हाट का आंसर कौन कर रहा है, एन ओरल प्रेजेंटेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन व्हाट को आंसर करता है। ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर नाउन भी है, ओरल प्रेजेंटेशन एक फ्रेज भी है, सो इट्स कॉल्ड नाउन फ्रेज। तो इस तरह से आपने करना है। हमने कल तो कर लिया था इसको अंडरलाइन, बट हमने डिस्कस नहीं किया था। आई होप सो कि आपको नाउन फ्रेज, प्रेडिकेट और बाकी जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स सिंपल एंड कंपाउंड, ये समझ आ गई होगी। देन वी विल डू द ग्रामर इन द नेक्स्ट। बेसिक लेवल से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज 9th में आपने किए हैं, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने ज्वाइन किया, तो वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे। आज के लिए नाउन फ्रेज था, कल हम टाइप ऑफ फ्रेजेस बाकी करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेज ऑल टाइप्स जो आगे आ रही हैं वो हम उसको देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो नाउन की आप देख लें, इसकी और भी आपको कहीं से एग्जांपल मिलती हैं, उसको भी देख लें। क्लास का भी मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, बाकी चीज़ें हमने कर ली हुई हैं जो कल की क्लास में। तो अगर अभी कोई क्वेश्चन है देन अदरवाइज आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए लीव कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। ये जो अल्फा बीटा गामा रेस जो है ना, ये अपना थोड़ा सा नेम आप लोग अपडेट कर ले, बिकॉज अभी मॉनिटर कर रहे होते प्रिंसिपल साहब, तो अलाउ नहीं है कि इस तरह को आपको ज्वाइन किया जाए। ये अल्फा आ जाता है, कभी कोई पबजी आ जाता है, अब क्या पता कौन है। अपना फुल नेम लिखें, रोल नंबर भी लिखें, क्योंकि हम रजिस्टर पे उस पर अटेंडेंस लेना होता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू।